Good morning, everybody. Myself, Dr. Lidmar Shanware. We are starting quantum mechanics. First topic, we are taking introductions of quantum mechanics. Myself, Dr. Lidmar Shanware, Assistant Professor, Department of Physics, NS Science College, Mulchera. Now we are studying what is quantum mechanics. Now, before quantum mechanics, there are two types of quantum mechanics. One is classical mechanics, another is quantum mechanics. What is classical mechanics? Classical phenomena, interference, diffraction, polarization, जो हमें चीज़ें दिखती है, that is some kind of ball, rocket ball, motion, all these related जो हमारे classical ideas जो होती है, we call them as classical mechanics. What about quantum mechanics? Those phenomena are microscopic, means small, microscopic phenomenon is called as quantum mechanics. What is microscopic phenomenon? For example, photon, electron, and effect, photon, atom scattering, any other photoelectric effect, Compton effect. These are all quantum mechanics. Why we need it? What is classical? If you think about in classical ways, suppose if you go in a hill, you are just going in a continuation manner. Classical physics. What is quantum? If you go the same hill but we use steps, then we call as quanta. That is quantum mechanics. These are the basic of it. Why we in last topic we are taking, there is one of the topic, failures of classical theory, why it is fails and why we need quantum mechanics. Okay, now we are taking a next one. What is the basic difference between classical mechanics and quantum mechanics? Why classical? So classical theory is this. One example is stability of an electron. What is stability of electron? According to atom theory, atom consists of center is positive and outermost orbit electron are revolving in an orbit. ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इट कुड कंटिन्यूसली रीडिंग अगर कंटिन्यूसली मूविंग तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन से वो रेडिएशन से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और फिर डे बाय डे उसका ऑर्बिट डिक्रीज होते जाएगा एंड गोज टू जीरो, एक सेंटर में जाएगा. फिर ऐसा अगर ये प्रॉब्लम आता है तो फिर हाउ इट इज नॉट एक्सप्लेन, तो उसके लिए एक दूसरी थियरी नहीं की बोस थियरी, फिर उसने बताया कि वो एक फिक्स ऑर्बिट में होता है. मतलब क्लासिकल थियरी फेल्स. दिस इज क्लासिकल थियरी फेल्स. Also, if you are consider second one, classical theory also fails to explain photoelectric effect. What is photoelectric effect? When photoelectrons, this light incident on this matter, there is no connection in between this anode and cathode. There is no current source. But certain frequency light, certain classical theory के हिसाब से frequency और intensity का कोई relation नहीं होता है. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन से वो, तो क्लासिकली देयर शुड बी नो वायर, तो हाउ करंट विल फ्लो? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इसका मतलब देयर शुड बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन हाउ इट इज एक्सप्लेन? मीन्स वी कंसिडर सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स यहां से जा रहा है वहां जाके मिक्स हो रहा है, उससे करंट बन रहा है. दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटा ऑफ एनर्जी. दिस इज द डिफरेंस. इट इज नॉट एक्सप्लेन by classical theory, it is explained by quantum theory. This is one of the example. Second is also one of the examples. Classical theory, it is the diagram shows this diagram is your black body spectrum. एक black body होती है, always know in टेल्स्ट्रा अंदर black body होता है, उसके अंदर हम रेडिएशन डालते हैं, फिर उसका रेडिएशंस हम स्टडी करते हैं, तो you get different color. Suppose blue light, then this is peak of wavelength and red light. And some next is, तो यहां जो है this y axis there is a energy and along x axis there is wavelength. You show कि whenever short wavelength, मतलब wavelength छोटी है तो एनर्जी बहुत बड़ी होती है for short wavelength high frequency. जैसे जैसे दैट इज द रिलेशन. नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, इफ एटम्स वाइब्रेट एट एन फ्रीक्वेंसी तो उसी वाइब्रेशन से हमें एनर्जी मिलती है, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है. बट एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करते हैं, वी गेट डिफरेंट, बीच में एक पीक मिलता है. दैट पीक इज नॉट एक्सप्लेन, दैट इज एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी. तो ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी, तो फेल्ड. तो इसी की वजह से हमें क्वांटम थ्योरी का यूज लेना पड़ा. तो क्वांटम थ्योरी कैटास्ट्रॉफी है, ये बाद में हम लेंगे ही, बट स्टिल दिस इज द बेसिक व्हाट इज वी नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो ये जो स्पेक्ट्रम है दैट फर्स्ट इज
लो फ्रीक्वेंसी लो है पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाले पार्ट में एनर्जी ज़्यादा होती है। फॉर शॉर्ट वेवलेंथ वी गेट हाई फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो दिस, और उसके हिसाब से उसकी एनर्जी भी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब E इक्वल टू दिस केस इट गिव्स द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ये एक रिलेशन दिया। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देयर इज नो फिनोमेनन, बस एनी इंसिडेंट ऑफ लाइट, इफ एनी इंसिडेंट, यहां अगर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लाइट कमिंग एंड यू गेट इंस्टेंटली यू आर गेटिंग, बट इज नॉट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मिलती है। दीज आर सर्टन ड्रॉबैक ऑफ योर क्लासिकल थ्योरी। इसी हिसाब से हम क्वांटम थ्योरी के हम इसमें आते हैं। तो दिस इज द सम ऑफ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले पहला नाम आता है मैक्स प्लैंक। ही गिव्स द स्टार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? उसने बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स छोटा 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 पार्टिकल्स जिसका रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, मतलब वो मूविंग होता है। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन E इज इक्वल टू h म्यू। अगर उसमें बहुत ज्यादा फोटॉन्स है तो E इक्वल टू NH म्यू। तो उसने एक एजम्पशन दिया। तो यहां से मैक्स प्लैंक ने फिर स्टार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। These are certain assumptions. Black body can emit radiation in discrete quanta, and छोटी छोटी क्वांटा में मल्टीपल ऑफ क्वांटा। जैसे एक उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n stands for number, n stands for number and h stands for Planck constant। एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू h इक्वल टू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। दिस इज द यूनिट। These are the simple and simple we need इंट्रोडक्शंस एंड व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हमें उसके लिए ले, तो उसका एजम्पशंस है। इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग ड्यूअल नेचर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, लाइक फीडबैक इसमें लिखो। थैंक यू वेरी मच।